Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss one part of ethics paper that is from part from Indian philosophy. So in ethics paper, you have normative ethics concept or topic. Under normative ethics, there are different branches of ethical reasoning. And these branches of ethical reasoning are virtue ethics, deontological ethics, consequentialist ethics, and rights ethics. And under virtue ethics, there are different philosophers. Even Indian philosophers come under virtue ethics, and in which you have Buddha, Mahavira, or Vedantic philosophers. So in this lecture, I am going to discuss Buddhism idea, and in that I am going to discuss one very important concept given by Gautam Buddha, given by Tathagat. So today we are going to discuss this very interesting and very important concept of Buddhism, that is Pratitya Samutpad. Okay. So, Pratitya Samutpad, what is this concept of interdependent co-origination that we are going to discuss now. Now, in Buddhism, guys, there is a concept of Four Noble Truths. And in Four Noble Truths, in first Noble Truth, Buddha said, okay, that life has an inevitable suffering. There is suffering in life, and this suffering is inevitable. Everyone suffers. And this inevitable suffering in the life, okay, has a cause. So in second noble truth, Buddha said that there is no cause without effect, okay, or every effect is preceded by cause. And there is this interdependent co-origination between cause and effect, and that he explained in the concept of Pratitya Samutpad. And then again he went on extending this concept where he brings the idea of Dwadash Nidan Chakra, etc. And through this, okay, he establishes the link between suffering as an effect and its cause, that is desire, Trishna, and ignorance, Avidya. So Buddha reached that suffering is an effect whose cause is a desire, Trishna, and ignorance, Avidya, through this theory of Pratitya Samutpad, interdependent co-origination. Without cause, there is no effect. So it is very, very important concept of Buddhism, and you can use this concept in many other papers also. For example, in essay paper also, you can use this concept of Pratitya Samutpad, which will help you explain any essay topic also. So it's very important and awesome concept of Buddhism. So this Gautam Buddha, okay, gave this idea of Four Noble Truth. So I told you first noble truth is Sarvam Dukkham, हर कोई दुखी है, संसार में दुखी दुख है, और तीन दुख जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल सफरिंग्स, दैट इज जरा, मरण और व्याधि. देन गौतम बुद्धा सेड दैट दुख समुदाय का कारण तृष्णा है. ओके, दैट सफरिंग गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ तृष्णा, डिजायर, एंड दैट इज रिजेक्शन ऑफ परमनेंस. सो दुख का समुदाय का कारण तृष्णा है, ओरिजिनेशन. और ये पॉइंट तृष्णा का रीच करने के लिए इसका सब पार्ट आता है वो प्रत्यय समुत्पाद की थ्योरी. And now once you know what is that effect, inevitable or effect is inevitable suffering, हर effect का cause है, then Trishna as the cause, that Buddha arrived. And now once you know the cause, then you can address the cause, alter the cause, Trishna, then you can address the suffering, दुख. So दुख, Trishna के निरोध से दुख निरोध संभव है. And how to do that? उसमें Buddha gave the idea of दुख निरोध प्रतिपद गामिनी मार्ग, okay, या दुख निवृत्ति ही मोक्ष है, और उसके लिए बुद्धा गेव द आइडिया ऑफ अष्टांगिक मार्ग. नाउ सो दिस सेकेंड नोबल ट्रूथ contains in its metaphysics or in Buddhist metaphysics this concept of Pratitya Samutpad, interdependent co-origination, that we are what we think, all that we are arises with our thoughts. With our thoughts we remake the world. अब ये काफी इंटरेस्टिंग कोट है, स्टेटमेंट है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. सो बुद्धा का कहना क्या था थ्रू दिस इन प्रतीत्य समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंट को-ओरिजिनेशन, दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट. और दुनिया में हर चीज एक कॉजैलिटी से लिंक्ड है, कॉजल रिलेशन से लिंक्ड है. हर कॉज का एक इफेक्ट है, और हर इफेक्ट इज प्रिसीडेड बाय कॉज. ओके, सो बुद्धा का कहना था यू माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस लिंकेज बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बट इट एग्जिस्ट. एवरी कॉज प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट. ओके, एंड सो बुद्धा का जो कहना था कि आपके घर के बाहर अगर कोई पेड़ है, आपने वो पेड़ काट दिया, उसकी कोई डाली भी काट दी, यू डोंट अंडरस्टैंड, बट योर कॉज इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट. यू डोंट नो, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, ओके, बट वन वे और अदर यू हैव इंपैक्टेड योर ओन एग्जिस्टेंस. एक मिनट से ही सही, एक सेकेंड से ही सही, यू हैव रिड्यूस्ड योर लाइफ स्पैन. ओके, या फिर आपको एक पेड़ लगा दो, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, बट एक मिनट से ही सही, ओके, यू हैव इंक्रीज योर लाइफ स्पैन. सो
एवरी एक्शन वी डू, और इसी से बुद्धा की कार्मिक थ्योरी भी आती है, जुड़ जाती है, दैट एवरी एक्शन वी डू इज लिंक्ड विथ एन इफेक्ट थ्रू कर्मा। और बुद्धिज्म में कोई कर्मों का फल जो है कभी आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगा, कर्मों का फल इसी जन्म में, इसी लाइफ में यहीं पे मिलेगा। सो एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, एवरी एक्शन यू डू हैज अ इंटरडिपेंडेंट लिंकिंग कोओरिजिनेशन। तो फिर बुद्धा का यही कहना था कि आपके लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ ओके लीव्स बिहाइंड कार्मिक इंप्रेशंस, और यही कार्मिक इंप्रेशंस गो ऑन एक्यूमुलेटिंग, कीप ऑन शेपिंग योर लाइफ, एंड वन डे दिस कार्मिक इंप्रेशन ओके कम्स बैक टू यू इन अ गुड वे और बैड वे। तो बुद्धा के बहुत सारे कोट्स इस लाइन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगते हैं। गोज अराउंड कम्स अराउंड, लाइट अ लैम्प फॉर समबडी ओके एंड इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर ओन पाथ, या डू गुड टू अदर्स एंड गुड विल कम बैक टू यू। सो बुद्धा का जो कहना था दैट एवरी एक्शन वी डू ओके इट क्रिएट्स कार्मिक इंप्रेशंस, and with this karmic impression we shape our world, we shape our existence, और वो उसी तरफ we keep on moving and this karmic impression take us towards an end, an effect, okay, and so whatever you are doing causes, they leave behind karmic impression and they take you towards effect। और इसलिए बुद्धा का एक बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर ये एक्सप्लेन करना है, बहुत बार आपको इथिक्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस साल वेदांता में विवेक गुरु नानक पे क्वेश्चन आया था कि विच आर द गुरु नानक्स इंपॉर्टेंट थॉट्स एंड हाउ दे आर रिलीवेंट इन टुडेज सोसाइटी। तो फिर ये प्रतीत समुत्पाद भी आज की सोसाइटी में हाउ इट इज रिलीवेंट इन टुडेज सोसाइटी, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, एंड हाउ प्रतीत समुत्पाद इज रिलीवेंट इन टुडेज सोसाइटी। तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कोई लड़का है ओके उसने घर से ही बहुत सारा वायलेंस देखा है, या उसका अपब्रिंगिंग सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। अब वो बच्चा स्कूल जब जाता है ओके ही हैज लर्नड हाउ टू एंजॉय रॉन्ग थिंग्स और एंजॉय थिंग्स इन रॉन्ग मैनर। फिर कुछ सिंसियर बच्चों के साथ बैठा, उसको लगा मेरी इनके साथ नहीं जमेगी, आई कांट गो वेल विद दिस किड्स। एक दूसरा ग्रुप है थोड़ा राउडी है, उसको उनके साथ ज्यादा मजा आ रहा है, ही इज एंजॉइंग विद देम, वो उनकी कंपनी में जुड़ गया इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी ऑफ सिंसियर गुड स्टूडेंट्स। अब उनके साथ रह के वो फिर और राउडीनेस करने लगा और मिसबिहेवियर करने लगा या छोटे मोटे कांड करने लगा। अब यही करते करते आगे जाके ही स्टार्टेड टू इवन टीज द गर्ल्स इन द क्लासरूम, उनकी छेड़छाड़ निकाल करो। यही आगे जाके बड़ा होके वो सड़क पे भी इवटीजिंग करने लगा, कई पब्लिक गैदरिंग्स में लड़कियों का मॉलेस्टेशन भी करने लगा। नाउ दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और एक दिन ओके वो लड़का ओके दिल्ली के किसी बस में किसी निर्भया का गैंगरेप करते अरेस्ट हुआ। एंड नाउ जब गवर्नमेंट ने उसको फांसी दी, सो डोंट थिंक कि मुझे फांसी उस निर्भया के गैंगरेप की वजह से उस इंसिडेंट के लिए मिली, बिकॉज एवरीथिंग यू डिड इन लाइफ वॉज टेकिंग यू टूवर्ड्स दैट इंसिडेंट। एवरी कार्मिक इंप्रेशन यू आर लिविंग बिहाइंड क्रिएटिंग, इट वॉज शेपिंग योर लाइफ okay, and it was carrying you towards the effect. So every cause has an effect, okay, and this cause and effect is very strongly linked okay through this interdependence. So every cause has an effect, यही बुद्धा का कहना था। So whether you understand it or not, but you are shaping your life। और बुद्धा का फिर और एक एग्जाम्पल just to make you this concept easily understandable, कि कोई सड़क पे कोई लड़का है, उसको बाइक मिली है, यंग है, उसको रैश ड्राइविंग करना बहुत पसंद आ रहा है, विली मारो कट मारो, एंड इज डूइंग दिस रैश ड्राइविंग, या बहुत वो नॉइजी साइलेंसर लगाया है, उसको नॉइज करते सड़क पे रैश ड्राइविंग करने में बहुत मजा आ रहा है। आजू बाजू जो बूढ़े लोग हैं, रास्ता क्रॉस करे, बच्चे लोग हैं, वो डर रहे हैं ओके, बट यू एज अ राइडर डोंट केयर अबाउट दोज पीपल ओके, और आप बहुत रैश ड्राइविंग करते जा रहे हो, और यहीं पे कोई छोटे बच्चे हैं जो आपको देख के ये समझ रहे हैं कि हाउ रैश ड्राइविंग कैन बी डन, रैश ड्राइविंग कैसे की जाती है ओके, कट कैसे मारा जाता है, विली कैसे मारी जाती है। और कल जब 20-25 साल बाद आप बूढ़े होंगे, रोड क्रॉस कर रहे होंगे, आपको ही देख के कोई रैश ड्राइविंग करने जो सीखा है, वही लड़का अपनी बाइक लेके रैश ड्राइविंग करके कट मारने या विली मारते आएगा और आपको ठोक देगा, एंड यू माइट डाई और इवन एंड अप इन ICU इन अ हॉस्पिटल। तब ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, because when you were young you are the one who acted as a role model for those kids how you should behave in a irresponsible manner। तो आपने जो कार्मिक इंप्रेशन छोड़े थे, they came back haunting you okay, so goes around comes around okay, leave behind good karmic impression, good things will come back to you,
you leave behind bad karmic impression, bad things will come back to you. That every cause and effect is interlinked, interdependent co-origination, प्रतीत्य समुत्पाद. ओके, और इसलिए बुद्धा का एक कोट काफी इंपॉर्टेंट था, काफी ऑसम कोट है कि आप वही बन जाते हो जो आप सोचते हो आप हो. ओके, बहुत क्लासिक थॉट है कि आप वही बन जाते हो जो आप सोचते हो आप हो. ओके, बिकॉज what you think automatically comes in your words, comes in your actions, and your thoughts, word, deeds, actions are everything is interlinked. और यही प्रतीत्य समुत्पाद बुद्धा जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, we are what we think. Okay, with all that we arises with our thoughts we make the world. Okay, so all that we are arises with our thoughts. हम जो भी है हमारे थॉट से पैदा हो रहा है. तो थॉट सही करो तो आपके वर्ड्स, योर पर्सनैलिटी सही हो जाएगी, योर एक्शंस will be right, and you will be at right karmic impression, and you will be living a right life or good life. You will get it as a nirvan, दुख निरोध. और यही लाइन पे गांधी का भी स्टेटमेंट था, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स. या थॉट्स, वर्ड, डीड्स, एक्शन शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन, शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस. ओके, एंड यही फिर ऑटोमेटिकली विल ब्रिंग गुड थिंग्स टू यू और विल इवन ब्रिंग बैड थिंग्स टू यू. सो प्रतीत्य समुत्पाद का जो बेसिक आइडिया था, काफी अच्छा कंसेप्ट है फिलॉसफी में कोट करने के लिए, इथिक्स के पेपर में, इवन एसेज में. सो बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, हाउएवर इट इज अ हाईली डेवलप्ड ट्रेडिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट. ओके, बुद्धा के आइडियाज आर मोर फिलोसॉफिकल देन सम रिलीजियस कोड और ऑर्डर कि आप ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो, कोई कर्मकांड करो, ये पंडित पुरोहितवाद, ऐसी चीजों में बुद्धा नहीं गए. बुद्धा लोगों के जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे लाइफ के, दुख है सबको, और उससे मुक्ति देने के लिए क्या करना है, ही गिव द एक्सट्रीमली ऑसम फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट बुद्धिज्म in Buddhism. So it is a highly developed philosophical thought which focuses extremely on ethical code of conduct. तो पहले ये प्रतीत्य समुत्पाद समझो, कॉज इफेक्ट लिंकेज समझो, वो समझ में आ गया, then automatically you will start treating the world in an ethical manner, you will start living the world in a ethical manner. तो Buddhism is a highly evolved philosophy of ethics or philosophical thought centered on ethical behavior. और यही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में वो ethical behavior दिए. ओके, एटफोल्ड पाथ, मिडल पाथ इसमें. So based on the principle of cause and effect and expressed in the principle of interdependent co-origination. And once we understand this principle, we get deeper insight कि आप मेरी जो actions है, thoughts है, words है, और ये सारी दुनिया कैसे interdependent, interlinked है. And once we understand this interdependence, then automatically, okay, we can be careful with what kind of karmic impression we are leaving behind. So when we apply this teaching into our lives, we gain the deeper insight into true nature of things. How every universe is interconnected, interlinked, every action is impacting the others. तो फिर आप आज बचपन में, आप जब आपके आज छोटे बच्चे हैं, you are married and you have kids, और आप as a parents don't take care of your parents, आप उनको आश्रम में जाके छोड़ के आए, या घर में उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते, उनकी सेवा ठीक से नहीं करते, तो आपको देख के ही ओके जो बच्चे हैं आपके वो बड़े हो रहे. कल जब वो बड़े होंगे, आप बूढ़े होंगे, आपके बच्चे आपको आश्रम में छोड़ के आ जाएंगे, या दे विल नॉट ट्रीट यू गुड. और जब आप बोलोगे कैसा बेटा है, डजंट टेक केयर ऑफ योर ओन पेरेंट्स, तो आपका ही बेटा आपको सुनाएगा ओके आपने क्या किया था, हाउ डिड यू ट्रीट योर पेरेंट्स. तो मुझे मत मोरालिटी सिखाओ कि माँ बाप का ख्याल कैसे रखा जाता है, नहीं, जब आपने खुद कभी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा. सो एवरी टाइम यू आर ट्रीटिंग योर पेरेंट्स बैडली, यू आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर योर किड्स हाउ यू कैन ट्रीट योर पेरेंट्स इन अ बैड मैनर. और आपको देख के वही वो चीजें सीख रहे हैं. सो एन एंटायर सोसाइटी, योर फैमिली, कल्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग शेप्ड आउट ऑफ दिस नर्चरिंग प्रोसेस. सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. और ये अगर आपको हमें समझ में आ गया, दिस वी गेट डीपर इंसाइट इनटू आवर लाइफ्स, into our action, thoughts, how they shape the world, and automatically then okay we begin to understand that nothing is an island unto itself, nothing is separate, nothing is an island, everything is very strongly interdependent with each other. So nothing is separate on its own, and that nothing is completely self-contained or self-reliant. Everything is interdependent and nothing is exist separately. Whether your emotions, because even what emotions you are expressing, okay, impact the other people.
and then automatically your words, your emotions impact other. So everything in this world, nothing is island into itself. Everything is interdependent. So everything that is exists solely because of other events that have also co-arisen. और जो भी हो रहा है वो भी previously जो भी impacts हुए, okay, उसका cause का effect है, और आज जो हो रहा है वो भी एक किसी चीज का cause है जो आगे होने वाली चीजों में इफेक्ट के फॉर्म में हमें नजर आएगा. ओके, सो एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड. सो एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्ट सोनली बिकॉज ऑफ अदर इवेंट्स दैट हैव आल्सो co-arisen. Okay, so all things are dependent upon cause and effect. And so to put it simply, this teaching reveals the interconnectedness of between all beings and events, and we are all part of this greater whole. So ये सृष्टि का पूरी जो सृष्टि है is very strongly interlinked, and we are this part of this greater whole. Okay, and every action, karma that we take impacts entire universe, and universe, whatever happening around you in the universe also impacts you one way or the other. और इसलिए फिर इसी थॉट को आप बहुत इलॉबरेट करके काफी हायर लेवल पे भी लिख सकते हो कि आपके आजू बाजू कोई गलत चीज हो रही है, ओके, और आप तटस्थ रह रहे हो, देन ये तटस्थता भी एक कार्मिक इंप्रेशन है दैट विल कम बैक हॉन्टिंग यू. अभी एक रामधारी सिंह दिनकर का एक काफी ऑसम कोट है रश्मि रथी में कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध. तो जो न्यूट्रल है, कोई अगर गलत चीज हो रही है, यू डोंट अपोज दैट, ओके, वही चीज आगे जाके, ओके, व्हेन विल कम बैक हॉन्टिंग यू, दैट टाइम योर न्यूट्रलिटी यू विल रियलाइज is very bad thing. So जब हिटलर जूस को इस तरह से ट्रीट कर रहा था, most of the Germans either stayed neutral or supported him instead of opposing. और उसके बाद जो जर्मनी बर्बाद हुआ, ओके, अब ये मत बोलना कि जर्मनी क्यों बर्बाद हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू सपोर्टेड देम. अभी जो पैलेस्टीन में हो रहा है, ओके, हमास ने जो अटैक किया इजराइल पे, अब इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है. अब बहुत सारे लोग पैलेस्टीनियन के ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, देखो सिविलियन को मारा जा रहा है, इनोसेंट्स को मारा जा रहा है, फाइन. But when you harbored the terrorist organization like Hamas, you supported this terrorist organization like Hamas, okay, directly, indirectly, okay, you are responsible for the whatever happening on Israel attack. So everything is interdependent. You can't isolate yourself, okay, from the remaining world. And this world is very strongly interdependent. बुद्धा का यही कहना था. तो ये थॉट बहुत जगह पे लिंक हो जाता है. ओके, आपकी पर्सनल लाइफ हो या नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आप जितना सोचो यू विल सी दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस फिलोसॉफिकल थॉट. तो बहुत क्लासिक लेवल पे ये थॉट है, ओके, दैट नथिंग इज आइलैंड एंड एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट. एंड दैट्स व्हाई बुद्धा का एक नाइस कोट दैट व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स, गुड थिंग्स विल कम बैक टू यू. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. सो व्हेन यू विश गुड थिंग्स टू अदर्स, good things will come back to you. So to do good, good will come back to you. Do bad, bad will come back to you. Okay. So और ये बहुत psychologically भी linked है. Psychologically, even modern psychology supports this idea कि आप if you are having evil mentality, little bit wrong way to enjoy pleasure, vicious mentality है, तो फिर आपको वही लोग पसंद आएंगे या सोसाइटी में उस आदमी को ऐसे ही लोग पसंद आएंगे, okay, जो उसकी मेंटालिटी के हो. Automatically, if you are a good person, then you will be in contact with the good people. You will learn good things from them, and automatically, फिर आप जो सोच रहे हो वैसे एक सोसाइटी का, ग्रुप का आप पार्ट बनते जाओगे, and this is where it will take you, and you will end up becoming. So this is extremely interdependent. So when you wish good for others, good things will come back to you. That is law of the nature. So that's वेरी स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये कंसेप्ट मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा मेरे ऐप क्लासेस में. दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद. और ऐसे और भी बहुत इंडियन फिलोसॉफी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है दैट आई विल डिस्कस विथ यू, जो आपको बहुत काम आएंगे आपके इथिक्स के पेपर में भी, और उससे भी ज्यादा इवन एसे के पेपर में भी इनका बहुत रिलेवेंस है. इनको आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग एटसेट्रा में, या इंट्रोड्यूस दिस फिलोसॉफिकल आइडियाज विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो stay tuned for such a more interesting thoughts, and like and subscribe my channel Darshanik IAS, share with your friends and help me grow. To download notes, join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel, and I will keep updating my this notes, PDFs, etc. on the Telegram channel. So stay there and stay connected.
And you can also download my app Darshanik IAS by Kadam sir on Google Play App Store. I will soon be launching ethics essay full-fledged courses there, so you can take advantage of those courses. Okay, so thanks for listening guys, and stay tuned.